Hello everyone and welcome to the exercise 1.1 of relation and functions. In the first part of this topic, we have seen what is Cartesian product, what is a set and what is a relation and the types of relations we have already seen that. Okay. So this whole exercise is basically it's all about the types of relations. Okay. So if we know the definitions of the types of relation, for example, if we know about the what is symmetric relation, what is reflexive relation, and what is transitive relation, then only we can do this exercise. Because this whole exercise is having the questions only on the topic of symmetric relations, reflexive relations, and transitive relations. So in my previous video, I have already told you about the concept of reflexive, symmetric, and transitive. If you have not seen that video yet, please go and watch that video so that you can have an idea about the relations and the type of relations. And if you see that video, or if you already know about the types of relation, then only you can do this exercise. Otherwise, it is not possible that you do the exercise without knowing about the types of relations and their definitions, because the whole exercise is having the questions on the transitive, reflexive, and symmetric. Okay. So in the next slide, I can show you. Okay, I can show you the questions, and you can easily see. You can clearly see that the all of the questions are only depends on the reflexive, symmetric, and transitive. As the first point, in the first point, it is said that determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric, and transitive. So you should have the knowledge about the reflexive, symmetric, and transitive. And in my previous video, or you can watch any YouTuber's video where you can feel easy to understand these reflexive, symmetric, and transitive. And you can see my video also, because with the help of animations and with the help of PPT, I try to tell you about the reflexive, symmetric, and transitive. Okay. So let's revise one more time about the reflexive, symmetric, and transitive, so that we can easily complete this exercise. Okay. So now let's try to understand the reflexive, symmetric, and transitive. Okay. And you should know about the relation also. And before knowing about the relation, you should know about the Cartesian product of the sets. And before knowing about the Cartesian product of sets, you should know about the set. And all these topics I have covered in my previous video. If you don't have seen that video, please go and watch. Well, now discuss about the let's discuss about first the reflexive, symmetric, and transitive. So if I discuss about reflexive, okay, if I discuss about this reflexive, so a reflexive relation can be given as if there is a set A, okay, and there are the number of elements in set A, okay. Then the reflexive relation can be given like if A comma A belongs to R. You can say for A comma A belongs to R, for every A belongs to set A. हिंदी में बताता हूं कि अगर किसी रिलेशन में किसी सेट के सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स हैं तो वो रिफ्लेक्सिव है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट लिया ए, इसके अंदर मैंने डाला 1 2 3. एक मैंने रिलेशन लिया आर, इसके अंदर मैंने लिख दिया 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1.
So you can clearly see that the every element, okay, every element in set A have the doublets in that relation. You can see the doublet of 1 is 1 comma 1, the doublet of 2 is 2 comma 2, and the doublet of 3 is 3 comma 3. So you can easily see that the every element of set A have its doublets in relation. So I can say this relation R is reflexive. दूसरी भाषा में बोलूं या हिंदी भाषा में बोलूं तो अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स किसी रिलेशन में मौजूद हैं, ओके, इफ द डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी सेट is present in any relation, then we can say that relation is a reflexive. Okay, अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट्स के डबलेट किसी रिलेशन में प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, तो मैं उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलूंगा। सभी एलिमेंट्स के होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 1 है, 1,1 ये है ही नहीं, 2,2 और 3,3 है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स हैं, 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, जैसे कि 2,2 और 3,3 इसमें है, तो मैं बोलूँगा हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। ओके फाइन, तो रिफ्लेक्सिव की कहानी थी ये। दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन कैसे दी जा सकती है? इफ एनी एलिमेंट A, B, okay, belongs to relation R, then B, A should also belongs to R. यानी अगर किसी रिलेशन में 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। अगर किसी रिलेशन में 3, 1 है तो 1, 3 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या होती है? सिमेट्री जैसा कि मैंने एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो दैट इफ अगर मैं किसी पत्ते को, ठीक है, अगर मैंने पत्ता लिया है एक पेड़ का, ठीक है, इस तरीके से है, मैंने इसको बीच में से यहाँ कैंची से काट दिया इसको, तो इसके 2 पार्ट बचे, ठीक है। एक पार्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो ये तो पहले वाला पार्ट हो गया, ये काटने के बाद, और ये दूसरे वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जो डार्क सा है। तो ये दोनों एक जैसे ही तो दिख रहे हैं, सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। अगर इंसान की खोपड़ी है, इंसान की खोपड़ी को बीच में से काट दो तो वो सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे दिखें जो। तो आप देखो 1, 2 और 2, 1 एक जैसे ही तो हैं। 1, 2 एलिमेंट्स तो सेम है, बस ऑर्डर चेंज हो गया है। 1, 2 और 2, 1, तो क्या बोलूँगा मैं? सिमेट्री है। 1, 3 और 3, 1 भी क्या है? सिमेट्री है। 1, 4 और 4, 1 भी क्या है? सिमेट्री है। 1, 5 और 5, 2 क्या सिमेट्री है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 तो है लेकिन यहाँ 1 है या 2 है, ये डिफरेंट है, तो ये सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल चेक करने का तरीका क्या है कि अगर किसी रिलेशन में A, B है, इफ A, B is present in any relation, then B, A should also present in that relation. And what is a relation? Relation is nothing but a subset of a Cartesian product. And what is a Cartesian product? I have already told you in my previous video that how to find out the Cartesian product of two sets with the help of arrow diagram, as well as with the help of roster form, and as well as with the help of set builder form. Okay, तो ये होता है हमारा सिमेट्रिक। फाइन, सिमेट्रिक क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सिमेट्रिक के बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर A, B किसी रिलेशन में है और B, C भी किसी रिलेशन में है, तो A, C भी होने चाहिए, ठीक है, समझ में आया? A, B यानी 1, 2 है अगर किसी रिलेशन में, तो 2 से स्टार्ट होने वाला अगर कोई दूसरा भी है किसी रिलेशन में, क्योंकि ये 2 से खत्म हो रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 3, क्योंकि ये B, C है ना, अगर B पे खत्म हो रहा है तो B से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर 1, 2 और 2, 3 किसी रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए? जो कॉमन है उसको हटा दो, जो बचे हुए हैं 1, 3 भी होना चाहिए, A, C भी होना चाहिए, B, C और A, B अगर है, अगर ऐसा है तो वो ट्रांजिटिव है। दूसरी चीज, अगर A, B किसी रिलेशन में है बट B, C है ही नहीं,
तो क्या वो ट्रांजिटिव होगा? यस, तब भी ट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल ये रिलेशन है जैसे आर, ठीक है, इसमें मैं लिख दूँ 1,2, 2,3, 1,3 एंड 1,4। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? देखो 1,2, 2 पे खत्म हो रहा है, ठीक है, 1,2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखो कौन सा है, 2,3, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2,3, 3 पे खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? कुछ, कोई भी नहीं है, ठीक है। जब, चलो आगे देखेंगे इसको। अब देखो 1,3, 1,3, 3 पे खत्म हो रहा है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं है। नेक्स्ट है 1,4, क्या 4 से स्टार्ट होने वाला कुछ है? नहीं है। तो जब 1,2 और 2,3 है तो 1,3 होना चाहिए, ये बोलता है ट्रांजिटिव, ठीक है, क्योंकि 2 पे खत्म हो रहा है दोनों, 2 से ये खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1,3 बचा, तो ये होना चाहिए। क्या 1,3 है रिलेशन में? हाँ है, तो ट्रांजिटिव हुआ। अब देखो जब 2,3 है तो क्या 3 से होने वाला, शुरू होने वाला कुछ है? नहीं है। जब है ही नहीं तो हम चेक ही नहीं करेंगे। 1,3 में भी 3 से होने वाला कोई स्टार्ट नहीं है तो उसको भी चेक नहीं करेंगे। 1,4 में भी 4 से शुरू होने वाला कोई नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे। जब है ही नहीं तो चेक ही क्या करना? तो ये सारा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। हर एलिमेंट को हमें चेक करना है। हमें बस ये देखना है, जैसे 1,2 है, ये 2 पे खत्म हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? ये है। अब जब ये 2 से स्टार्ट हो रहा है तो बचे क्या? 1 और 3, तो क्या 1,3 है? हाँ है, ये रहा। फिर इसके लिए चेक करो, फिर इसके लिए चेक करो, फिर इसके लिए चेक करो, सबके लिए चेक करना है हमें। तो ये होता है हमारा ट्रांजिटिव। तो ये 3 चीज़ें थी जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है ट्रांजिटिव। मैंने जल्दी जल्दी तीनों चीज़ें बता दी। आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक रिलेशन है एक सेट में 14 तक है, ये नेचुरल नंबर है 14 तक, डिफाइंड एज r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और जो हमारा सेट ए है वो दिया हुआ है 14 तक, और x और y क्या है? सेट ए से ही क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ये इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखा तो आप मान लो, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन में लिखा होता है जब एग्जाम में आता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा तो आप मान लो, ठीक है। ए सेट दिया है तो इसी से बिलोंग करेंगे, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्स भी क्या है 1 से लेकर 14 तक है, और वाई भी क्या है 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। इसमें दिया नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें ऐसा होगा, इसी इस यहाँ ब्रैकेट क्लोज ना होके कोमा लगा के बोला जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए, फिर ये ब्रैकेट लगेगा, ठीक, ऐसे होगा। और अगर ऐसा नहीं दिया है तो आप खुद से मान लो, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ये है क्वेश्चन। एक सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, और एक रिलेशन दिया। तो सबसे पहले और एक चीज और दी हुई है कि ये जो एक्स है ये बिलोंग्स टू है ए एंड वाई इज आल्सो टू ए, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 3x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब मैं यहाँ when x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x बिलोंग्स टू a है तो a में जो वैल्यू होंगी वही x की होंगी। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है? 3 है, ठीक है। जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या है? 6 है। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है? 9 है। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है? 12 है। जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 15 होगी। लेकिन y जो है वो a से बिलोंग करता है और a सिर्फ 14 तक ही है, तो 15 आ रही है, तो ये तो वैल्यू आगे की क्या होगी? एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो हमारे जो एलिमेंट्स आए वो आए हैं सिर्फ r इज इक्वल टू 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12, ठीक है। ये मेरा रिलेशन आ गया है। अब मुझे सबसे पहले चेक करना है इसमें रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि जो हमें सेट दिया हुआ है उसके सारे डबलेट्स होने चाहिए। अब है क्या? 1 पे डबलेट है? नहीं है। 2 का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, तो हम बोलेंगे सिंस a comma a does not belongs to R, so it is not reflexive, ठीक है। दूसरा पॉइंट चेक करना इसका सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था कि a कोमा b है तो
बी कोमा ए भी होना चाहिए। अब देखो जैसे इसमें 1,3 है तो क्या 3,1 है इसमें? नहीं है। तो ए कोमा बी, या मैं लिख दूं ए कोमा बी छोड़ दूं, 1,3 तो है इसमें, बिलोंग्स टू आर। 3,1 है ही नहीं, does not belongs to R. So it is not symmetric. Okay. ओके, तीसरी चीज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो जैसे 1,3 है पहला, 1,3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है? हाँ है, यह 3,9। तो जब 1,3 है और 3,9 तो 1,9 होना चाहिए, बाहर वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, 1,9 है इसमें नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1,3 तो है और 3,9 बट 1,9 नहीं। सो नॉट ट्रांस। ठीक है, समझ में आई ये चीज? तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ओके। सो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं। फाइन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 have been said that the relation R in the set n of natural numbers defined as R is equal to x comma y and y is equal to x plus 5 and x is less than 4. So you can do it yourself. Okay, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो 2 भी इजीली हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको कंडीशन दी हुई है कि जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट है मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर जाएंगे, लेकिन x की वैल्यू 4 से कम दी है तो हम 1 2 और 3 रखेंगे x की वैल्यू। जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6, क्योंकि y इज इक्वल टू x प्लस 5 है। 2 रखने पर 7 आएगी, 3 रखने पर 8 आएगी। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा, ठीक है, वो बनेगा 1,6 2, नो 1,6 2,7 एंड 3,8 और 1,5 2,7 और 3,8 रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। 1,5 7 और 3,8 आपके सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव होंगे। क्योंकि ट्रांजिटिव क्यों होंगे देख लेते हैं। ठीक है, इसको करा देता हूँ, लेकिन आगे के 2 क्वेश्चन थर्ड फोर्थ करना तो इजी सा है। ठीक है, तो देखो सो हमें जो नेचुरल नंबर्स का सेट दिया हुआ है, ठीक है, यानी 1 2 3 टिल इनफाइनाइट। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है और रिलेशन हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि x, y और सच दैट जो x है या वो x प्लस 5 और जो x की वैल्यू है उससे कम दी है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 2 और 3 हो सकती है। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो 1 से स्टार्ट होंगे और 4 तक है तो 3 तक ही जाएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 2 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी? x से 5 ज्यादा है तो कितनी कितनी होगी? 1 रखने पर कितनी होगी? 6 होगी और 2 रखने पर 7 होगी और 3 रखने पर 8। ठीक है, तो मेरा रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन कुछ इस तरीके से बनेगा 6 2,7 और 3,8। ये मेरा रिलेशन बन गया। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव मतलब डबलेट्स होने चाहिए नेचुरल नंबर्स के, डबलेट्स नहीं है तो रिफ्लेक्सिव कोई है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक चेक करने का तरीका क्या है? अगर 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए मैं क्या लिख दूंगा कि 1,6 तो रिलेशन में है बट 6,1 तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए 1,6 से शुरू होने वाला कुछ है? 1,6 पे क्या 6 से शुरू होने वाला कुछ है? इसमें नहीं है। 2,7 के लिए 7 से शुरू होने वाला है? कुछ नहीं है। 3,8 में 8 से शुरू होने वाला है? कुछ नहीं है। तो जब a कोमा b तो है, हमने क्या पढ़ा था? a कोमा b है रिलेशन में, ठीक है, लेकिन b कोमा c नहीं है।
तब भी क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो जब 1,6 है लेकिन 6 कोमा या 2,7 है तो 7, समथिंग या 3,8 तो 8, समथिंग है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रांजिटिव। ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, खुद से करना, मैं रिलेशन बना के दे देता हूँ इसका। क्वेश्चन आपको खुद से करना है, तो रिलेशन कैसे बनेगा, इसको हटा देता हूँ। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई एंड वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, और ए दिया हुआ है 6 तक। ठीक है, ए जो सेट है वो इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6, और जो रिलेशन है वो इस तरीके से है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ, बना लो इसको। रिलेशन कैसे बनेगा, y जो है वो x से डिविजिबल है, मतलब यहाँ जो नंबर आएगा y की जगह वो x से डिविजिबल है। तो 1 के लिए देखते हैं, 1,1 होगा, ये 1 इससे डिविजिबल है। ठीक है, 1 को 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 1 से डिविजिबल है, 1,3 होगा, 1 को 1 को 5 और 1 6 होगा। 2 के लिए एक तो 2 को 1, ठीक है, 2 को 4 होगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल है, 2 को 6 होगा। ठीक है, 3 के लिए 3 को 3 होगा, और 3,3 होगा, 3,6 होगा। हमें बस वो नंबर्स लिखने हैं जो जिसमें y जो है, जैसे मतलब ये वाली जो वैल्यू है, जो बाद में जो लिखी हुई वैल्यू, पहले वाली वैल्यू से डिवाइड हो गई। ठीक है, वो नंबर लिखने हैं बस। तो ऐसा कॉम्बिनेशन ध्यान से बनाना पड़ेगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया। बात करते हैं 4 के लिए, तो 4 को, अब 4,1 1 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 4 से डिविजिबल नहीं है, 3 नहीं है, 4 4 5 6 नहीं, 5 और 6 को 6 होगा। ठीक है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 14 एलिमेंट जो इस रिलेशन में बने। इसमें आपको क्या क्या देखना है, पहला देखना है रिफ्लेक्सिव। देख सकते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स हैं, जो सेट दिया हुआ है इसमें जो प्रेजेंट है सभी एलिमेंट्स उसके डबलेट्स है। 1,1 है, 2,2 2,2 भी है, 3,3 है, 4,4 भी है, 5 भी है, 6,6 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्री के लिए क्या चेक करते हैं, अगर 1,1 है, 1,1 का सिमेट्रिक क्या होगा, 1,1 ही होगा तो है। 1,2 का सिमेट्रिक क्या होगा, 2,1 क्या 2,1 है, नहीं है, तो हम लिख देंगे 1,2 तो है लेकिन 2, नहीं है। अगर एक भी नहीं है तो हम वही बोल देंगे नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव, इसका ट्रांजिटिव चेक करना होगा, तो कैसे करेंगे, देखो इसका ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें एक एक एलिमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका मैं ट्रांजिटिव चेक करना बताता हूँ कैसे करते हैं। हाँ जी, तो मैंने रिलेशन जो है वो दोबारा से लिख लिया है, सब हटा के। मुझे ट्रांजिटिव ध्यान से देखना है, क्योंकि ट्रांजिटिव इसका चेक कैसे करना है। देखो, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या लिखता हूँ, सबसे पहले तो मैं सारे एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, 1 को या एक एक करके लिखते हैं। 1,1 के लिए हम वो देखेंगे, क्योंकि ये 1 पे खत्म हो रहा है, 1 पे खत्म हो रहा है, तो हमें इसमें ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं रिलेशन में जो 1 से स्टार्ट हो। तो 1 से स्टार्ट कौन सा है, 1,2 है, 4 1 4 1 4 और 6। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर a कोमा बी है और b कोमा सी है तो a कोमा सी भी होना चाहिए। यानी अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान, और ये फिर ये b है और ये c है, तो अगर a कोमा b रिलेशन में है और b कोमा c रिलेशन में है, अरे b मैंने क्यों माना है, क्योंकि ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है। मैंने वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो, क्योंकि ये मेरा पहले वाला एलिमेंट्स 1 पे खत्म हो रहा है, तो मैं वो लिखूंगा जो 1 से स्टार्ट हो। तो 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, इतनी चीज समझ में आई। अब ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर a कोमा बी है और b कोमा सी है तो a कोमा सी भी होना चाहिए। यानी अगर 1,1 है और 1,2 है तो 1,2 भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 1,1 है और 1,3 है तो 1,3 भी होना चाहिए।
सिमिलरली इसके लिए 1,4 होना चाहिए, इसके लिए 1,5 भी रिलेशन में होना चाहिए और 1,6 भी रिलेशन में होना चाहिए। देखो 1,3 है, 1,4 है, 1,5 और 1,6 भी है। ठीक है, ये खत्म, 1,1 खत्म। अब बात करते हैं, ये खत्म हो चुका है, अब बात करते हैं 1,2 से। ठीक है, 1,2 कौन से लिखूंगा, 2 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 2 पे खत्म हो रहा है। अब 2 से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो एक तो 2,2 स्टार्ट हो रहा है 2 से, और देखो कौन सा स्टार्ट हो रहा है 2 से, 2,4 स्टार्ट हो रहा है और 2,6 भी स्टार्ट हो रहा है, और कुछ स्टार्ट हो रहा है 2 से नहीं। अब देखो अगर किसी रिलेशन में 1,2 है और 2,2 है तो अकॉर्डिंग टू 1,2 भी होना चाहिए। मतलब अगर ये वाले तो कॉमन है तो बाहर बाहर वाले भी होने चाहिए, यानी 1,2 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1,4 होना चाहिए। इसका अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1,6 होना चाहिए। अब देखो 1,2 है, ये रहा, 1,4 है, ये रहा, 1,6 है, ये रहा। इसका भी काम खत्म। जैसे ही हमारा अनमैच हो जाएगा ना कोई भी, हम वहीं रोक देंगे और बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन अभी तक सब सही चल रहा है। अब 1,3 के लिए चेक करना है, 1,3 में हम वो लिखेंगे जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 3,3 3,6 है, सिर्फ 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3,6। तो अगर 1,3 है और 3,3 है तो 1,3 होना चाहिए। ऐसे ही 1,3 और 3,6 के लिए 1,6 होना चाहिए। अब 1,3 ये रहा, 1,6 का है, ये रहा, ये दोनों है, इसका भी काम। अब बात करते हैं 1,3, ठीक है, उसमें हम वो लिखेंगे जो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 4,4 है ऐसा, बस। तो अगर 1,4 है तो 1,4 भी होना चाहिए। तो क्या 1,4 है रिलेशन में, है, ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं 1,5 की, जो 5 से स्टार्ट हो रहा है उससे इसकी जोड़ी बनाएंगे, तो ये यानी 1,5 भी होना चाहिए। तो 1,5 है रिलेशन में, है, ठीक है। इस तरीके से हमें सारे चेक करने हैं। ऐसे ही 1,6 देखेंगे, 1,6 में ऐसा देखेंगे जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6,6 से स्टार्ट हो रहा है तो 1,6 भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही 2,2 के लिए देखेंगे जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब आप सारे चेक कर लेंगे, आपको इतने मैंने कर दिए, बाकी भी कुछ करने हैं। जब आप सारे चेक कर लेंगे तो आप पाएंगे कि सबके क्या ट्रांजिटिव इस रिलेशन में, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा ये ट्रांजिटिव, सारे आपको करने हैं, ठीक है। मैंने इतने करके बता दिया, ठीक है। 2,2 चेक करेंगे तो 2, ऐसे ही बता देता हूँ, 2,2 चेक करेंगे तो 2,2 2 पे खत्म हो रहा है तो 2 से स्टार्ट, 2,4 और 2,2 ऑलरेडी, ऐसे ही 2,6 यानी 2,6 ऑलरेडी, ठीक है। अब बात करते हैं 2,4 की, जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, 2,4 भी मिल जाएगा। मतलब आप चेक करेंगे ना, आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। सारे मिलने का मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो जो थर्ड पार्ट इसका, जो थर्ड पार्ट ये क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये थर्ड पार्ट हमने किया ना, रिफ्लेक्सिव था, ये था, सिमेट्रिक नहीं था, ट्रांजिटिव था, ठीक है। सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। थर्ड में तीन मैंने करा, फोर्थ आपको खुद करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें देखना है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। एक रिलेशन दिया हुआ है तो एक्स कॉमा वाई। अब देखो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, अगर एक्स और वाई एक जगह पर काम करते हैं तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि एक्स कोमा एक्स भी होना चाहिए उस रिलेशन में और वाई कोमा वाई भी होना चाहिए, यानी एक्स और एक्स उसी जगह पे काम करते रहने चाहिए। तो एक्स तो खुद उसी जगह पे काम कर रहा है ना, तो उसके साथ उसका रिलेशन खुद का बन गया, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक, अगर एक्स कोमा वाई किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो वाई कोमा एक्स भी उसी जगह पे काम करने चाहिए, तो एक ही तो बात है, तो ये सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए अगर एक्स कोमा वाई किसी जगह पे काम कर रहे हैं और वाई कोमा जेड भी उसी जगह पे काम कर रहे हैं तो एक्स कोमा जेड उसी जगह पे काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब एक्स और वाई उसी जगह पे कर रहे हैं, वाई और जेड उसी जगह पे कर रहे हैं तो एक्स और जेड उसी जगह पे काम, तो ये ट्रांजिटिव, ठीक है। तो पहले वाला जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। सेकंड, एक्स एंड वाई लिखना सेम लोकेलिटी, तो ये भी ऐसे ही रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। x is exactly taller, x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y, ये बताइए x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या x खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो क्या y x से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, 14 सेंटीमीटर बड़ा है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है।
तो मैं क्या बोलूँगा कि थर्ड वाले के ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है और नहीं करना, ठीक है। ऐसे ही डी करना और ऐसे ही ई करना है, ठीक है। तो ये आपको अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है कि शो दैट द रिलेशन सॉरी इसमें बोला गया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, ठीक है। रिलेशन है आर डिफाइन किया हुआ है, आर इज इक्वल टू, एक मिनट चल एक यस, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे? इसमें जो हमें आर की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अ स्क्वायर एंड जो हमें रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और जो हमें सेट दिया हुआ है आर दिया हुआ है रियल, इसमें हमें बताना है कि ये शो करना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ये सिमेट्रिक होगा ना ये ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव का तरीका क्या है? देखो, अगर इफ a is less than or equal to b square है, then a is less than or equal to a square हो सकता है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि a कोमा a होता है ना रिलेशन में। जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, इसमें क्या होना चाहिए, a कोमा a होना चाहिए। मतलब ये जो a है इस a के, ये इस a का जो स्क्वायर है वो इस a से या तो कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब बताओ, किसी भी एक सिर्फ वन को छोड़ के, वन का स्क्वायर ही क्या होता है, वन के इक्वल होता है। तो किसी और नंबर का स्क्वायर उस खुद नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो a इज कांट बी लेस देन और इक्वल, a स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट a इज इक्वल टू। लेकिन हमें सभी रियल नंबर्स पे चेक करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो हमें सेट दिया हुआ है उसके सभी एलिमेंट्स के डबलेट होने चाहिए, सिर्फ वन का ही होगा यहाँ पे और किसी नंबर का नहीं होगा। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव समझ आया? अब बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिक की। देखो, सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर a कोमा b बिलोंग्स टू r है तो b कोमा a भी r से रिलेशन में होना चाहिए। अब देखो, अगर अगर a जो है वो लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर है, तो क्या b जो है वो लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर होगा? फॉर एग्जांपल, a की कुछ भी वैल्यू ले लो, a की वैल्यू ले ली मैंने 5 और b की वैल्यू मैंने 4, इसमें रख के देखो तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 16। अब इसमें रख के देखो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 25, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 25। देखो दोनों वैल्यू अलग है, यहाँ 16 है, 25, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 5, ठीक है। तो a कोमा बी अगर बिलोंग करेगा r से, तो क्या b कोमा a बिलोंग करेगा r से? नहीं करेगा, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक चीज और चेक कर सकते हैं। देखो, इसमें जो हमें दिया हुआ है ना, एक- इसमें जो हमें सेट दिया हुआ है वो रियल नंबर्स का सेट दिया हुआ है। रियल नंबर्स मतलब अगर मैं नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आ सकते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं, चाहे वो 0, 1, ठीक है, और 3 अपॉन रूट 8, 9, इधर -1, माइनस, मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं
जो भी रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल सब नंबर्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मुझे ये दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू a कोमा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। अगर मैं इसको चेक करूं इस रिलेशन को, ठीक है, मैं एक वैल्यू लेता हूं a की, लेता हूं मैं 2 और b की लेता हूं 4। ठीक है, अब 2 जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, 16 है, बिल्कुल है। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a कोमा a होना चाहिए, यानी अगर a की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो फिर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। लेकिन अगर मैं कोई रेशनल नंबर ले, ठीक है, रेशनल नंबर a की वैल्यू 1/2, ठीक है, तो 1, क्योंकि a कोमा a आना चाहिए ना रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव मैंने हालांकि बता दिया, लेकिन मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या आना चाहिए, a कोमा a आना चाहिए, मतलब a 1/2 है, और तो कंडीशन क्या है, a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, तो इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, इज लेस देन और इक्वल टू 1/4 होगा। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, 0.5 इज लेस देन और इक्वल टू 0.25 होता है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। यानी जितने भी रेशनल नंबर होंगे ना, उन सब के लिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, मैं लिख सकता हूँ कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिख सकता हूँ, तो रिफ्लेक्सिव में मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, a कोमा a डज नॉट टू r, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 1/2, और b क्या है, b स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर होना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1। लेकिन क्या कंडीशन ट्रू हो रही है उसकी वजह से, क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4 है, नहीं। ठीक है, तो मतलब ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, उस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। कौन से रिलेशन से, जिसमें ये कहा गया है कि a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर a कोमा b जो है वो किस रिलेशन में है, देन b कोमा a भी उस रिलेशन में होने चाहिए। अब a की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 1/, और b की वैल्यू 3/2। ठीक है, अब अगर a कोमा b है, यानी a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, 1/2, लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर क्या है, 3/2। तो ये तो ट्रू होगा, क्योंकि ये 0.5 और ये कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2.25। ठीक है, तो ये तो कंडीशन ट्रू होगी, ये वाले तो a कोमा b तो r से बिलोंग करता है। अब देखते हैं कि b कोमा a बिलोंग से r कर b कोमा a r से बिलोंग कर रहा है। b कोमा a का मतलब क्या हो जाएगा कि जो b है वो लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए। अरे इस रिलेशन में जब यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, यहाँ पर b है, यहाँ b है, जब मैं इसमें a की जगह b कर दूंगा और यहाँ a कर दूंगा, तो ये चेंज हो जाएगा, a की जगह b हो जाएगा और यहाँ a हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक चेक करना है। तो b क्या b इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर हो रहा है, अब b की वैल्यू क्या है, 3/2 इज लेस देन और इक्वल 1/2, ऐसा है क्या, ये कितना होगा, 1.5 इज लेस देन और इक्वल टू 0.25, क्या ऐसा है, नहीं, ये तो क्या 3.25 से, तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर सिमेट्री जो हमारा इफ a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 3/2, इस केस में हमारा a कोमा b तो बिलोंग करता है इस रिलेशन से, बट b कोमा a जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे ही हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में भी आप ऐसे जो क्वेश्चन है ना, इसमें जब हम रेशनल नंबर लेते हैं ना, तो हमें इजीली जो है चीज़ें पता चल जाती है। जो हमारे वैसे जो नंबर है, नेचुरल नंबर है या इंटीजर्स हैं, उनसे इतना क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, ये हमेशा ट्रू रहेगी। जैसे ही हम नेचुरल नंबर लेंगे ना, तब हमें असली झोल पता चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं ये रेशनल नंबर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि
जो सेट है वो रियल नंबर्स का है, और रियल नंबर्स में तो सभी नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए कोमा बी जो है वो किसी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी भी उसी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है, देन जो हमारा ए कोमा सी है वो बिलोंग करना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है, ए की वैल्यू रख लो, लेट ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू, अगेन 3/2 रख के देखो। अब ए कोमा बी यानी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 9/4, ये सच है। सी की वैल्यू कुछ रख लो, फॉर एग्जांपल सी की वैल्यू रख लो 5/4। ठीक है। ठीक है। अब बी कोमा सी यानी बी शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या होगी, 3/, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25/4, ये भी कंडीशन। तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, ए इज ए कोमा सी यानी ए इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू 1.2 और सी की वैल्यू 25/4। तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी, बताओ। हाँ, ये कंडीशन तो ठीक है, ये 0.5 है, ये लेस देन 6 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, चलो ये कंडीशन ठीक हो गई। अब मैं एक नेगेटिव नंबर लेके देखता हूँ, क्योंकि ये तो सभी चेक करने हैं ना, रियल नंबर में तो पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाते हैं। तो मैं लेता हूँ एक नंबर लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया ए को लिया, मैंने बी को लिया -4 और सी को, एक नेगेटिव नंबर मैंने ले लिया है कोई, और सी को ले लो कुछ भी 1 ले लो फॉर एग्जांपल। ठीक है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो बी कोमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो सी कोमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं, ए कोमा मतलब 2 कोमा -4, 2 कोमा -4 मतलब 2 इज लेस देन और इक्वल टू 16, ये कंडीशन ट्रू। अब बात करते हैं, ए कोमा सी तो कर गया बिलोंग, बी कोमा सी कर रहा है, बी की वैल्यू -4, सी की है, यानी -4 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये भी ठीक है। अब देखो सी कोमा ए, सी कोमा ए मतलब नहीं, सी कोमा ए, कोमा सी, सॉरी, ए कोमा सी, ए कोमा सी मतलब 2 कोमा, ठीक है। अब देखो कर इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्या ये कंडीशन ट्रू है, टू लेस देन होता है 1 से, नहीं होता। इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूँ ट्रांजिटिव, मैं लिख सकता हूँ कि 2 -4 बिलोंग्स टू आर एंड -4 also belongs to R, but 2 does not belongs to R, so it is not transitive. So it is not transitive. अब देखो ये ना रियल नंबर्स का सेट है, हमें क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है, ये प्रूव करना है। ये तो किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। अब सेट हमें देखना है रियल नंबर्स का है, तो हमें रियल नंबर्स को घुमा के देखना पड़ेगा। ये हर रियल नंबर के लिए फॉल्स भी नहीं होगा, हर रियल नंबर के लिए ट्रू भी नहीं होगा। अब हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है, तो हमें तो वो नंबर्स ढूंढने हैं ना जिनके लिए ये ट्रू नहीं है। तो वो नंबर्स ढूंढने का तरीका जैसे ही जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो आ जाए। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक रिलेशन आर है और एक सेट पे डिफाइंड है। इस सेट को हम बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, तो ए सेट पे रिलेशन डिफाइंड है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एंड जो रिलेशन आर वो डिफाइंड है लाइक ए कोमा बी सच दैट इज इक्वल टू ए प्लस 1, और हमसे हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, हमें ये चेक करना है। ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम कैसे करें, क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, एक मिनट, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए कोमा ए शुड बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। अब सेट ए मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इन सब के डबलेट्स होने चाहिए रिलेशन के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। अब हमें जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है b इज इक्वल टू ए
ठीक है, यानी बी जो होगा हमेशा ए से एक ज्यादा होगा। अब होने चाहिए डबलेट्स। अगर ए की जगह में 1 रख दो तो बी कितना होगा, ए की जगह में 1 रखोगे तो बी कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ए की जगह में 2 रखोगे तो बी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा यहाँ से, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा सेट ही बना देता हूँ उसका। ठीक है, जो रिलेशन का सेट है वो बना देता हूँ। देखो आर इज इक्वल टू है ए को सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो सेट में कितनी वैल्यूज है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो जब बी इज इक्वल टू में दिया हुआ है ए प्लस 1, तो जब बी की वैल्यू व्हेन जब ए की वैल्यू 1 होगी तो बी कितना होगा, 2। जब ए की वैल्यू 2 होगी तो बी कितना होगा, 3। जब ए की वैल्यू 3 होगी तो बी कितना होगा, 4। जब ए की वैल्यू 4 होगी तो बी कितना होगा, 5। और जब ए की वैल्यू 5 होगी तो बी कितना होगा, 6। और जब ए की वैल्यू 6 होगी तो बी कितना होगा, 7। बट ये तो 7 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो यहीं तक होंगे तो। ठीक है, तो जो मेरा रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया रिलेशन। ये रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में देखो क्या डबलेट्स हैं इसके, इस सेट के डबलेट्स हैं, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, ए कोमा ए डज नॉट टू आर, क्या सिमेट्रिक होगा। अगर रिलेशन आपके पास आ गया तो फिर तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, 1 कोमा 2 के लिए 2 कोमा 1 चाहिए, नहीं है, तो 1 कोमा 2 है रिलेशन में, लेकिन 2 कोमा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए अब देखो 1 कोमा 2 से 2 कोमा 3 स्टार्ट हो, ठीक है, तो 1 कोमा 3 भी होना चाहिए, तो 1 कोमा 3 है इसमें, नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1 कोमा 2 तो बिलोंग्स टू आर है, एंड 2 कोमा 3 भी बिलोंग्स टू आर है, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा, ना ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हमें दिया हुआ है शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू, ये आर क्या है, सेट ऑफ रियल। ठीक है, रियल नंबर्स मतलब जो भी नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं, तो ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले। देखो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक हो, हमें कंडीशन दी हुई है कि जो ए है वो लेस देन और इक्वल टू बी है, और जो हमारा सेट होगा वो ए कोमा बी होगा। और हमें कंडीशन में साफ दिया गया है कि ये जो बी है ये इस ए के इक्वल भी हो सकता है, ये जो बी है इस ए के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, यानी अगर मैं किसी अगर रिलेशन में ऐसा कुछ आ जाए, अगर मैं ए की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5 ले, तो क्या बी की वैल्यू भी 5 होगी, हो सकती है, क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन आ रहा है, या तो छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। यानी उस रिलेशन में 5 भी होगा, 2 भी होगा, मतलब जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके डबलेट्स प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि साफ बोला गया है कंडीशन में कि ए या तो छोटा है बी से या इक्वल है। ठीक है, अगर ए और बी इक्वल है, ठीक है, अगर ए और बी इक्वल है तो डबलेट्स तो अपने आप ही हो गए ना, क्यों, रिलेशन में हम क्या लिखते हैं, ए कोमा बी लिख रहे हैं ना। जब ए और बी इक्वल हो गए तो मैं रिलेशन में क्या लिख सकता हूँ, ए कोमा ए लिख सकता हूँ ना। ठीक है, क्योंकि कंडीशन दी हुई है कि इक्वल हो सकता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा आर इज इक्वल ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अब रख के देख लो, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ओके, अगर ए की वैल्यू 5 है देन बी कैन बी 5, एंड फॉर एवरी रियल, ठीक है, अगर ए की वैल्यू क्या है, आर
then B would always be R because A is less than or equal to B, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि A कॉमा A जो है वो R से बिलोंग करेगा, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं इसकी सिमेट्रिक की। किसने बोला सिमेट्रिक नहीं है, तो चेक कर लेते। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी रिलेशन में फॉर एग्जांपल 2,3 है तो 3,3 होना चाहिए। अब ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 है, बी की वैल्यू 3 है। ठीक है, कंडीशन दी हुई है हमें ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, यानी 2 तो लेस देन और इक्वल टू 3 है। क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 2 होगा? नहीं हो सकता। जब ये इससे छोटा है तो क्या ये इससे छोटा हो जाएगा पलटने पे? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, ना ही इक्वल हो सकता है। अगर ये बड़ा है तो इस ये नंबर चेंज करने से साइन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। नहीं समझ आया मेरा कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल ए मैंने 2 लिया, बी 3 लिया, ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा ए है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, बी है। ठीक है, बी मैंने 3, ठीक है, बी मैंने क्या, अब ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है। ये क्या हो रहा है इसमें, एक, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि मैंने ब्लैक स्क्रीन ओपन कर दी, ठीक है। अब देखो ए इज लेस देन और इक्वल टू बी दिया हुआ है। अब जो सिमेट्री चेक करनी है, सिमेट्री के लिए हमें पता है कि अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन आर से बिलोंग करता है, देन बी कोमा ए भी उस रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब मैं ए की वैल्यू 3 डाल दूँ और बी की वैल्यू 2 डाल दूँ, ठीक है, या अब मैं कह दूँ कि 3,4 तो बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो क्या 4,3 भी बिलोंग करेगा? बताओ, ये तो बिलोंग करेगा। तो क्या 4,3 बिलोंग करेगा? क्या 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है? नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग। तो जब ए कोमा बी तो आर से बिलोंग है, लेकिन बी कोमा ए नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, यही हमें प्रूव करना था। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि हाँ ये ट्रांजिटिव तो होगा। अब देखो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, ऐसे ही कोई 3 नंबर ले लो, ठीक है, ऐसे ही कोई 3 नंबर लेते हैं। तो 3 नंबर मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए लिया मैंने 3, बी लिया मैंने 5 और सी लिया मैंने 7। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करने चाहिए। अब ए कोमा बी मतलब 3,5 मैंने लेट कर लिया ये, ठीक है। अब 3,5 आर से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि 3 क्या है, 5 से छोटा है। ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। और बी कोमा सी यानी 5,7 भी आर से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। इस केस में ए ये है, बी ये है, क्योंकि हमें ए और बी इस फॉर्म में लिखने हैं ना, इस फॉर्म में लिखने हैं। तो ध्यान से देखो, इस फॉर्म में लिखने हैं, पहले ए आएगा फिर बी आएगा। इसमें ए पहले आया, बी बाद में आया, तो ए बी से छोटा है। इसमें फिर पहले ए आया फिर बी आया, ए बी से छोटा है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है क्या ए सी से छोटा होगा, ए जो है वो क्या सी से छोटा होगा, तो क्या 3 जो है वो 7 से छोटा होगा? हाँ होगा, होगा, क्यों नहीं होगा? अरे 3 जो है वो 7 से छोटा हो रहा है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया ना, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। सो वी कैन से कि ए कोमा बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देन सी कोमा ए भी आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। यही हमें क्या करना था अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें यही तो प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, ठीक है, एंड ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब इज
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हमें रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी एंड सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जो ए कोमा ए है वो बिलोंग्स टू होना चाहिए आर टू एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पर सेट क्या है, आर है, तो रियल नंबर्स का सेट है। तो हमें जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। हमें ए की वैल्यू अगर 2 रख, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 8, कंडीशन ट्रू। ए की वैल्यू 3 रखूँ तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 27, ये भी ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज रख के देख ली, अब नेगेटिव वैल्यूज रख के देखो। ए की वैल्यू अगर -2 रखूँ तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू -8। क्या ये सही है? क्या -2 -8 से छोटा होता है? नंबर लाइन 0, -1, -2 और -8 नहीं इधर जाके। तो बताओ -2 छोटा है या -8 छोटा है? नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर छोटे होते हैं उनको हम बड़ा करते हैं, ठीक है। तो -2 और -8 में से कौन सा छोटा है? -8 छोटा है। लेकिन ये यहाँ पर क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इसको ठीक से लिखूँ कि ये तो रखते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ फोर ए इज इक्वल टू -2, क्योंकि -2 भी तो रियल नंबर है, हमारा सेट रियल नंबर है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि फोर ए इज इक्वल टू -2, ठीक है। ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं फोर ए इज इक्वल टू -2, ए कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि ए क्या है? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ठीक है। अब जब ए की वैल्यू 2 है तो -2 इज, क्योंकि ए की जगह भी, बी की जगह भी क्या है, यहाँ बी की जगह यहाँ बी है। जब मैं यहाँ ए रख दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक स्टेप और लेते हैं। जब ए को मैं ए कर दूंगा तो मैं ए इज लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब होना चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है? -2 इज लेस देन और इक्वल टू -8। क्या है कंडीशन? ट्रू है। कंडीशन क्या है? ओके, सो मैं कह सकता हूँ क्योंकि -2 -8 से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया हमने। अब बात करते हैं हम किसकी? रिफ्लेक्सिव हो गया, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए कोमा बी अगर किसी रिलेशन आर से बिलोंग करता है देन बी कोमा ए भी उस रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन है ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ए की वैल्यू अगर मैं ले लूँ, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लूँ और बी की वैल्यू ले लूँ 3, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 27। ये हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब एक नेगेटिव वैल्यू रख के देख लेते हैं। नहीं, ये तो किसके लिए हो गया? ये तो हुआ ए कोमा बी के लिए। अब बी कोमा ए के लिए बात करें अगर, ये तो क्या है? ए कोमा बी के लिए है, ठीक है। अब अगर मैं बी कोमा ए के लिए बात करूं तो क्या होगा? बी इज लेस देन और इक्वल टू ए क्यू। बी की वैल्यू क्या है? 3, लेस देन और इक्वल टू ए क्यू। ए की वैल्यू क्या है? 2, यानी 8। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये कंडीशन क्या होगी? हम नेगेटिव वैल्यूज रख के देख लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज में मैं रखता हूँ ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 3 रखता हूँ, ठीक है। चेक करता हूँ ए कोमा बी के लिए, तो ए की वैल्यू -2 इज लेस देन और इक्वल टू 27, ये कंडीशन हो गई ट्रू। और बी कोमा ए के लिए
बी यानी 3 इज लेस देन और इक्वल टू -2 क्यूब मीन्स -8, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 3 -8 से छोटा होता है? बड़ा होता है, ठीक है, तो ये हो गई फॉल्स। यानी मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ -2, 3 belongs to R, 3, -2 does not belongs to R, so it is not symmetric। ठीक है, सिमेट्रिक समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव बात, ट्रांजिटिव में कुछ वैल्यू क्या देखते हैं, ए की एक वैल्यू, बी की एक वैल्यू, सी की एक वैल्यू। फॉर एग्जांपल ए की मैंने वैल्यू लिखी 2, बी की रखी मैंने 4 और सी की रख लो ठीक है, ए की रखी मैंने 2, बी की रखी मैंने 4, सी की रख के देखो 2 रख के देखो, तो 2 रखने पे ए, पहले तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बी बिलोंग्स टू आर है, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर सी, ये होती है ट्रांजिटिव की कंडीशन। ए कोमा बी यानी 2 कोमा 4 यानी 2 इज लेस देन और इक्वल टू 64, ये कंडीशन। फिर 4 कोमा इज लेस देन और इक्वल टू 8, ये कंडीशन ट्रू। तो क्या ए कोमा सी यानी 2 जो है लेस देन और इक्वल टू 8 होगा? ए कोमा सी की बात, 2 कोमा 2, हाँ होगा, ठीक है, ये कुछ और वैल्यू देखते हैं, ये ना वैल्यूज रख के देखना पड़ रहा है, लेकिन मैं बता दूं इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, इन ना तो सिमेट्रिक होते हैं, ना ये ट्रांजिटिव होते हैं, और ना ही ये क्या होते हैं, ना ही ये रिफ्लेक्सिव होते हैं। चलिए और कुछ वैल्यू रख के देखते हैं। मैं रखता हूँ टेन, ए की ज़्यादा रखते हैं, बी की उससे कम रखते हैं, सी की सबसे कम रखते हैं। अब देखो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 64, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए इज लेस देन इक्वल टू बी टू आर। अब इसके बाद बी कॉमा सी यानी 4 इज लेस देन और इक्वल टू 8, यानी बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी इज लेस देन और इक्वल टू, वेट, क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो हाँ, ए की वैल्यू रखते हैं 10, बी की रखते हैं 4, सी की रखते हैं 2, ठीक है। कंडीशन है हमारी ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। अब 10 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 64, यानी ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू आर है, बिकॉज ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। दूसरी चीज 4 इज लेस देन और इक्वल टू 8, यानी बी कोमा सी भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि बी इज लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब है। नेक्स्ट 2 इज लेस देन ए कोमा सी, इट मीन्स हाँ, ए कोमा सी मीन्स ए इज लेस देन और इक्वल टू सी क्यूब, ओके। सो ए क्या है 10, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 8, क्या ए कोमा सी आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 8 से छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, तो ए लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि 10 कोमा 4 बिलोंग्स टू आर, 4 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर, बट 10 कोमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रू। हमें वैल्यूज रख के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सिमेट्रिकल है, कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है, ओके। सो ये इस क्वेश्चन की सारा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है एक सेट में, सेट का नाम है, सेट का दिया हुआ है 1 2 3, और रिलेशन दिया हुआ है 1 2 3।
इज सिमेट्रिक, बट ये तो देख के ही पता चल रहा है। देखो सिमेट्रिक तो ये है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ये प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम देखेंगे कि जो ए कोमा ए है वो बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी बिलोंग्स टू, अगर मैं इस सेट का नाम ए दे, ठीक है, तो हर इसके डबलेट होने चाहिए। सेट के हर एलिमेंट के क्या है, नहीं है। सो बट a comma a does not belongs to R in given question. Okay, so it is not reflexive. और आप दूसरे उसमें लिख सकते हैं, दूसरे भाषा में, कि 1 does not belongs to R, 2 does not belongs to R, and 3 also does not belongs to R. So it is not reflexive. ठीक है, या तो ऊपर वाली लाइन लिख दो या नीचे वाली लाइन लिख दो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया, नहीं है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमें प्रूव करना है। जो हमें रिलेशन दिया हुआ है 1 कोमा। अब इसमें देखो 1 कोमा बिलोंग्स टू आर एंड 2 कोमा बिलोंग्स टू आर, बट 1 कोमा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके फाइन। अब बात करते हैं इसकी, ये ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव में करते हैं, बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिकल का देख के पता चल गया। सिमेट्रिकल के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि 1 कोमा 2 जो है आर से बिलोंग कर रहा है एंड 2 कोमा भी आर से बिलोंग कर रहा है, सो इट इज व्हाट, सिमेट्रिक। ओके, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सीधे सीधे आपको रिलेशन दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक है, फ्लेक्सिबल है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ द ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। देखिए आर एक रिलेशन दिया हुआ है x, y such that x and y have same number of pages. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, वो रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, ओके, जो ट्रांजिटिव भी हो, ओके, और जो रिफ्लेक्सिव भी हो। वो रिलेशन जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि ये जो है सिमेट्रिकल भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई है सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होती है कंडीशन के, ए कोमा ए जो है शुड बिलोंग्स टू आर, लेकिन इस केस में एक्स और वाई की बात हो रही है। हियर x, x should belongs to R, मतलब x and y have same number of pages। इसका मतलब क्या है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो जो x में जितने पेज हैं उतने ही x में होने चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है x, x मतलब x, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x और y जो है उनके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अगर रिलेशन में x, x है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब वो कब होगा, जब x और x दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब x और x एक ही तो बुक है ना, तो सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो उसी बुक की तो बात हो रही है, दो बार उसी बुक को तो लिखा जा रहा है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बिकॉज x एंड x will have same number of pages. Okay, so it is what, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव समझ आ गया। बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी
ट्रांजिटिव में क्या क्या मतलब है, अगर एक्स और वाई दो बुक है, ठीक है, एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस और वाई और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, देन एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसको लिख दो बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। क्या लिख सकते हैं, फॉर बीइंग दिस रिलेशन ट्रांजिटिव इफ एक्स एंड वाई है सेम number of pages and y and z same number of pages, then x and z should also have same number of pages, ठीक है। तो अब देखो, जब x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y और z में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो x और z अपने आप सेम हो जाएंगे, ठीक है। सो इट इज व्हाट, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब बात करते हैं हम किसकी, क्या बचा, सिमेट्रिक के बचा, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या है, सिमेट्रिक का सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर a कोमा b किसी रिलेशन R में है तो b कोमा a चाहिए, यानी अगर x कोमा y, यानी x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। तो वो तो सिंपल सी बात है यार, जब x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो वही तो बात बोली गई है। कान को चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़े तो कान ही गए, ठीक है। x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो ये क्या होगा, क्या होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिकल, अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो वी कैन से इट इज इक्विवेलेंट, ओके। आई होप सब, चलिए इसके बाद शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और बोला गया है गिवन बाय द आर, और रिलेशन आर दिया हुआ है और उसमें ए कोमा बी करके जो है क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कंडीशन दी है मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ओके। तो हमसे बोला गया इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे पहले इतना सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। अब देखो ए माइनस बी, अब रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या कैसे कहूंगा कि ए माइनस ए शुड बी इवन। अब ए माइनस ए क्या है, जीरो ही है, तो जीरो क्या होगा, इवन ही होगा, इवन होगा। मैं कह सकता हूँ कि ए कोमा ए क्या होगा, बिलोंग्स करेगा आर से, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या दी हुई है कि ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। जब यहाँ ए है और यहाँ बी है तो ए माइनस बी इज इवन, जब दोनों जगह ए होंगे, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो इवन है, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो मैं कह सकता हूँ ए कोमा ए जो है, अगर मैं बी की जगह डाल दूँ तो इस रिलेशन में होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में अगर ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए भी तो इवन होगा, क्यों, ए की वैल्यू ले लो 5, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या 1, ठीक है। 5 माइनस 1 ऑफ मोड 4, और मोड माइनस 5 क्या 4, तो क्या कह सकते हैं कि अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग कर, बी कोमा ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब दूसरी चीज सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी होगा, ये कैसे होगा, अगर ए की वैल्यू ले ली मैंने 5, बी की वैल्यू ले ली मैंने 1, सी की वैल्यू 3, ठीक है। अब देखो ए माइनस बी यानी 5 माइनस 1 4 इवन है, ठीक है। बी माइनस सी यानी 1 माइनस 3 मोड के साथ में, तो ये 2 होगा, ये भी इवन है। अगर ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी होंगे, यानी 5 माइनस 3 2,
ये भी इवन है। ठीक है, तो इवन, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ए कोमा बी भी है, बी कोमा सी भी है, ठीक है, और सी कोमा ए भी है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। क्या होगा, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है शो दैट all the elements of 1 3 5 1 3 5 are related to each other and the elements of 2 4 are related to each other। तो 1 3 5 के एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, करके देख लो। 1 और 3 का डिफरेंस क्या होगा, 2, तो ये क्या है, इवन। 3 और 5 का डिफरेंस क्या होगा, 2, 1 और 5 का डिफरेंस क्या होगा, 4। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि a माइनस बी इज इवन। अब 2 और 4 को देख लो, 2 माइनस 4 क्या होगा, 2 इवन है। 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 इवन। ठीक है, तो हम ये भी इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 1 माइनस 3 कर लिया तो 3 माइनस 1 भी दिखा दो। ठीक है, 5 माइनस 3 भी दिखा दो। तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है, और वही हमारे रिलेशन में बोला गया है कि a माइनस बी इज अ इवन। ऐसे ही मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करके देखा, तो जब भी 2 आ रहा है तो a माइनस बी इवन आ रहा है, तो ये भी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया है, बट नो, बट नो 1 3 5 is related to any element 2 and 1 3 और 5 2 और 4 के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, करके देख लो। 1 और 2 का डिफरेंस क्या आएगा, मोड 1 है, ये इवन नंबर है, नहीं ये ऑड नंबर है। ऐसे ही 1 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा, 3, ये भी ऑड। 3 और 2 का डिफरेंस क्या आएगा, 1, ये भी ऑड। 3 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा, 1, ये भी ऑड। 5 और 2 का डिफरेंस क्या आएगा, 3 और 5 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा, 1। तो सारे ऑड, तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं है क्योंकि हमें तो रिलेशन में बोला गया है कि a माइनस बी इज इवन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट होता है। फाइन, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए। एक ए सेट दिया हुआ है, यस, तो ए एक सेट दिया हुआ है एंड x belongs to z 0 to 12। okay, so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सेट है given by r is equal to a comma b such that a minus b is multiple of। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू गिवन बाय। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं रिलेशन दिखाने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम उसको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक करते हैं, हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस है। तो जो पहला हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें बोला गया है कि आर जो है वो ए कोमा बी है एंड ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल ऑफ। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसको प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बी की जगह आर इज इक्वल टू ए कोमा ए करना पड़ेगा, बी की जगह ए, यानी ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, यानी ए माइनस ए क्या होगा, 0, 0 तो 4 का मल्टीपल
सही है, होता है ना, एक ही जगह कुछ भी नंबर रख लो, 4 5 6, ठीक है, उसे हम ए में से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो डबलेट है। अगर ये 2 2 इसके अंदर कोई डबलेट है, 2 - 2 0 हुआ, 0 का मल्टीपल है 4, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि a, a belongs to R, so it is what, reflexive। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का प्रूव करते हैं, देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए बोला गया है कि जो a, b अगर किसी आपके रिलेशन में है, a, b रिलेशन में है, देन b, a उस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब a, b की बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी नंबर ले, मैंने ले लिया, ऐसे नंबर लेंगे जो जिनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 4 का मल्टीपल, मैंने ले लिया 12 और 8, तो 12 - 8 क्या हुआ, 4, यानी a की वैल्यू मैंने लिया 12 और b की वैल्यू, तो 12 - 8 क्या हुआ, ये 4 का मल्टीपल है, हाँ है। अगर मैं b, a कर दूं, यानी b - a करना है मुझे, तो b - a मतलब 8 - 12, यानी ये क्या आएगा 4, जब ये मल्टीपल है तो ये तो हुआ ही मल्टीपल, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ every a, b belongs to R, b, a would also belong to R, so it is what, it is symmetric। सिमेट्रिक भी होता है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं, लास्ट बचा क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए भी a की एक वैल्यू ले लो, b की एक वैल्यू ले लो, c की एक वैल्यू ले लो, वैसे वैल्यू ऐसे लेनी है, 4 का मल्टीपल है, एक ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं 8, एक ले लेता हूँ 12, देखो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 4, तो ये 4 का मल्टीपल है, यानी a, b belongs to R, इनका डिफरेंस क्या आएगा 4, यानी b, c भी बिलोंग्स टू R है, मल्टीपल है क्योंकि ये 4 का, तो ये कहता है कि a, c भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी इसका डिफरेंस क्या आएगा 8, तो ये भी मल्टीपल है, c, a, c भी क्या होगा R, सो इट इज व्हाट, ट्रांजिटिव। और अगर ये सिमेट्रिकल भी है, ठीक है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, इक्विवेलेंस है। क्या है ये, इक्विवेलेंस है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ओके। उसके अलावा बोलो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि आर दिया हुआ है हमें ए को सच दैट ए इज इक्वल टू बी। अब देखो ये तो सिंपल सी चीज है ना, रिफ्लेक्सिव तो ये हो ही जाएगा क्योंकि ए इज इक्वल टू बी है। अब बी की जगह अगर आप ए रख दोगे, ठीक है, कंडीशन दी क्या दी हुई है, ए इज इक्वल टू बी, अगर बी की जगह ए रख दोगे तो ए इज इक्वल टू ए होगा, यानी ए को ए क्या हुआ, बिलोंग्स टू आर, सो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, यानी अगर ए इस कंडीशन के हिसाब से अगर ए इक्वल टू बी है तो बी भी ए के इक्वल होना चाहिए, अगर जब ए इक्वल टू बी है तो बी तो ए के इक्वल अपने आप हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है। बात करते हैं ट्रांजिटिव में क्या बोला जाता है हमसे कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो सी इज इक्वल टू ए होना चाहिए। अरे यार जब ए इज इक्वल टू बी है एंड बी इज इक्वल टू सी है तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, सो इट इज व्हाट, सो इट इज व्हाट, और अगर ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिकल भी है, फ्लेक्सिव भी है, तो ये क्या इक्विवेलेंस, ठीक है। ये देखिए ये वीडियो ऑलरेडी 1.5 घंटे की हो चुकी है, मैं आपको सीधे कॉन्सेप्ट बताऊँ कैसे क्वेश्चन होंगे, जो आपको स्टेटमेंट लिखनी है वो खुद अपनी लैंग्वेज में लिखनी, ठीक है, कहीं से कॉपी नहीं करनी है, ये नहीं कि जो स्टेटमेंट मैं लिखूँ
आपको जो समझ में आए, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए स्टेटमेंट। ठीक है, अभी ऑलरेडी अगर मैं स्टेटमेंट लिखने लगूँ ना सारी, तो ये 4-5 घंटे की बैठ जाएगी वीडियो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट कैसे ये क्वेश्चन होंगे स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। रिलेटेड वन इन ईच केस मतलब पहले पार्ट में हमें वो बताना है कि मल्टीपल क्या हो, वन हो। मतलब ऐसा कुछ हो कि डिफरेंस करने पर क्या आ जाए, जब मैं 4 से उसको डिवाइड करूँ तो आंसर 1 है। ठीक है, ठीक है, और दूसरे में तो सिर्फ 1 ही ऐसा होगा जो 1 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और पहले में कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे रिलेटेड टू 1? एक तो 4 कॉमन हो सकता है। चलो देखते हैं इसको हटा पहले। देखो, जो सेट यहाँ इस पार्ट में बोला गया फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ऐसे नंबर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करें और ऐसा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने पर आंसर हमारा बना है। तो ऐसे हमारे पास सेट क्या है, इस सेट में से हमें वो नंबर ढूंढने हैं। 0 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सेट है हमारा। ठीक है, अब 4-4 के डिफरेंस पे ही तो आएंगे ऐसे नंबर, है ना। 1 और 5 अब होगा एक तो। ठीक है, और क्योंकि 1 माइनस 5 कितना होगा, 4 होगा। 4 को जब डिवाइड करूँगा तो 1 है। ठीक है, तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, जिनको जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है, जैसे 1 और 5 हो गया। ठीक है, 5 और 9। ठीक है, ठीक है, एक सेट तो हमारा ये बन गया 1, 5, 9। ठीक, तो एक सेट तो बन गया 1, 5। और क्या बना सकते हैं, 2 और 6, 6 और 10। ठीक है, तो 2, 6 और 10 इस तरीके से, क्योंकि इनका जब मैं डिफरेंस करूँगा ना, 1 माइनस 5 कितना होगा, 4 होगा, और उसको जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 1 ही तो आएगा। तो यही तो बोला गया है रिलेटेड टू 1। ठीक है, तो कोई भी एक सेट लिख दो, 3, 7 और 11 लिख दो चाहे। ठीक है, 3, 7, इनमें से कोई भी एक लिख दो, 1, 5, 9। ठीक है, तो और दूसरा क्या, दूसरे में क्या होगा, 1 ही ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि 1 इक्वल टू 1। तो मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा सेट जिसमें 1 आएगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में सब। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। या आपको खुद करना है कि मैंने एग्जांपल ऑफ रिलेशन, इतने सारे क्वेश्चन हो गए, एग्जांपल तो आप उनमें से कोई से भी उठा के देते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, तो ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी कॉमा। ठीक है, distance of a point P from the origin is same as the distance of a point Q from the origin। ठीक है, यानी distance of, या मैं ये लिखता नहीं, लिखा तो हुआ ही है, सब सीधा करते ही है। तो इसमें बोला गया है कि R इज इक्वल टू पी कोमा क्यू। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, फॉर एग्जाम्पल कोई ओरिजिन है। ठीक है, 0, इसकी डिस्टेंस पॉइंट P, ठीक है, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q। और एक पॉइंट यहाँ Q है, और ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस सेम है। अगर मैं इसको ओ, तो ओपी जो है वो ओक्यू के इक्वल है। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे ये बताना है कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के सबसे पहले क्या चेक करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या है कि जैसे पी कोमा क्यू लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं इस क्यू की जगह पी कर दूँ, यानी पी कोमा पी, तो कहने का मतलब क्या है कि जो पी की, जो इस पी की जितनी डिस्टेंस है ओ से, उतनी ही डिस्टेंस इस पी की है उस। अब ये दोनों पी क्या है, एक ही तो है, तो इसी डिस्टेंस की तो बात होगी ऑटोमेटिकली, तो ये तो इक्वल ही है। समझ रहे हैं ना, मेरे पास पी कोमा पी होता है। अब पी, ये एक ही तो है पी, ओ पी की बात हो रही है ना, ये पी एक ही तो है, तो उसकी डिस्टेंस एक ही तो रहेगी। तो जितनी ये, जितनी इस पी की रहेगी, जितनी इस पी की रहेगी, दोनों पी ही तो है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पी कोमा पी
is, or you can say P comma P belongs to R because OP is equal to OP। ठीक है, ये OP की ही तो बात हो रही है, पॉइंट की। ठीक है, अब दूसरी चीज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर P कोमा Q R में है तो Q कोमा P भी होना चाहिए, यानी P की और Q की अगर R, P की और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है तो Q और P की भी सेम होनी चाहिए। अरे एक ही तो बात है, P को चाहे उधर लिख दो, Q को उधर लिख दो, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, रहेगी ना। P Q की डिस्टेंस ओरिजिन से P और Q की सेम है और Q और P की सेम होनी चाहिए। अगर ऑर्डर ही तो बदला है, Q को इधर उठा के लेगा, P को इधर उठा के लेगा, डिस्टेंस थोड़ी ना बदली है। तो ये भी वही है, ये भी वही है, तो क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिकल भी है। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कहा जाएगा कि अगर P और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है और Q और P की भी ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है तो Q और R लिख दो इसको। ठीक है, तो P और R की भी सेम होगी होगी अगर मैं एक तीसरी लाइन और यहाँ पर खींच दूं, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। ये मैंने R खींच दिया और मैंने बोल दिया ये Q के इक्वल है। जब ये Q के इक्वल है तो P के इक्वल तो ऑलरेडी, Q भी तो P के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिकल भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये इक्विवेलेंस है। ये क्या है, इक्विवेलेंस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इसमें और क्या बोला गया हम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में बोला गया इसमें कि एक मिनट इसको पहले हटा। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है इक्विवेलेंट सॉल्यूशन फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to a point P 0, 0, P is not equal to 0, 0 is circle passing through P with origin is center। अब देखो ये 0, 0 origin था, ठीक है, ये एक पॉइंट P था, ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पर फॉर एग्जांपल Q था और एक पॉइंट ये R था। हमने यही तो इक्विवेलेंस अभी प्रूव करा है। ठीक है, अब P O P O Q और O R तीनों सेम है, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूंगा तो एक सर्कल ही तो बनेगा। ये रेडियस ही तो होगी सर्कल की, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। तो यही तो प्रूव करने के लिए बोला है कि सर्कल होगा। क्यों सर्कल होगा, क्योंकि लिख दो OP जो है वो और OQ और OR इक्वल होंगे डिस्टेंस में। ठीक है, और जब हम व्हेन वी ड्रॉ व्हेन या से व्हेन द पॉइंट्स P Q and R meet together then a circle will take place। ओके, तो आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आप दिखा दो डायग्राम कैसे बनाओगे। ये एक साइड ये होगा, ये पॉइंट P, ठीक है, ये पॉइंट Q, ये डिस्टेंस, और एक पॉइंट यहाँ ले लो, ये डिस्टेंस, और एक पॉइंट यहाँ, ये डिस्टेंस सेम है, इनको मिलाकर एक सर्कल तो बनेगा। सब पॉइंट्स का क्यों बनेगा सर्कल, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम हो, सर्कल में सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो यही इसमें पता। अब आगे चलते हैं। अब बोला गया है कि सेट है एक ट्रायंगल इज इक्वल टू T1, ठीक है, T1 इज सिमिलर टू T2। हमसे ये बोला गया है कि जो T1 है वो T2 के सिमिलर है। ठीक है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो जब T1 सिमिलर है T2 के तो T1 खुद के सिमिलर होगा T1 के, यानी T1 क्या होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया ये। अब तो आप खुद भी कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव हो गया। अरे वो खुद भी इक्विवेलेंस होगा। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक भी बहुत इजी हो गया इसमें। T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, तो T2 तो अपने आप ही सिमिलर हो गया T1 के, यानी अगर T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन R है तो T2 T1 भी तो बिलोंग्स टू रिलेशन R हो गए, क्योंकि आपस में क्या है, सिमिलर है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करते हैं इसकी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में T1 जो है वो सिमिलर T2 के है, T2 जो है वो सिमिलर T3 के है, तो T1 जो है वो सिमिलर T3 के अपने आप होगा या नहीं होगा। अगर ये ट्राइंगल, ठीक है, तीन ट्राइंगल
ये T1 और ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये तो आपस में सिमिलर हो ही जाएंगे। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि T2 अगर बिलोंग्स टू R है और T2 T3 भी बिलोंग्स टू R है, तो T1 T3 भी तो बिलोंग्स टू R होंगे। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया। और अगर ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इक्विवेलेंस है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड्स 3, 4 and 5, T2 with sides 5, 12 and 13, and T3 with sides 6, 8 and 10. Which triangles among T1, T2 and T3? अब देखो ये T1 की साइड्स हैं, ये T2 की साइड्स हैं और ये T3 की साइड्स हैं। हमें ये बताना है कि कौन से ट्रायंगल की साइड्स हैं वो आपस में रिलेटेड है। अब देखो T1 और T2 में जो रेशो आ रहा है, पहले T1 अपॉन T2 का रेशो क्या आ रहा है, पहली साइड का रेशो क्या है 3/5, दूसरी साइड का रेशो क्या है 4/12, तीसरी साइड का रेशो 5/13, ना तो ये इक्वल है ना ये इक्वल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं T2 और T3, T2 और T3 इसका देखते हैं, इज इक्वल 3/5/6 है। ठीक है, दूसरी साइड का 12/8 है और तीसरी साइड का 13/10 है, तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। ठीक है, बात करते हैं T1/T3। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें 3/6 आ रहा है, 4/8 आ रहा है और 5/10 आ रहा है तीसरी साइड। अब देखो ये 1/2, 1/1, तो यही तो रिलेटेड हो गया उसमें, T1 और T3 सिमिलर, क्योंकि साइड्स का रेशो क्या है, सेम है, 1:2। ठीक, तो इस तरीके से हमने रिलेशन भी निकाल सकते हैं। इसमें बोला गया है कि शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड द सेट A इज पॉलीगन सेट R इज इक्वल टू P1, P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको कुछ लगता है, वो कुछ नहीं है इसमें। P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो P1 की साइड और P1 की साइड भी सेम होगी, तो ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक के लिए P1 और P2 की जब साइड इक्वल है, P2 और P1 की भी इक्वल होंगी, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए P3 ले लो, अगर P1 P2 और P2 P3 इक्वल है तो P1 और P2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और रिलेशन बना के। ठीक है, उसके बाद बोला गया व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स 3, 4 and 5। अब ये किसके क्या बोला गया, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल T विद साइड्स 3, 4, 5। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है की साइड्स हैं तीनों, तो सेट भी किसका होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का होगा। तो सिंपल लिख दो कि जो 3, 4, 5 है आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, सो द सेट ऑफ ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, या द सेट ए इज द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सिंपल सी ये लाइन लिख देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी लंबी वीडियो होगी, सारे क्वेश्चन में करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल सेट ऑफ ऑल लाइंस एक्स वाई प्लेन्स। ठीक है, और जो रिलेशन है वो L1 इज पैरेलल टू L2। तो हमें बताना है कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो रिफ्लेक्सिव में चेक कर लेते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव, एक मिनट। रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं पहले। अब L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है। ठीक है, अब ये बोला गया है कि L1 इज पैरेलल टू L2, यानी अगर ये लाइन और ये लाइन, तो ये बोला गया है कि L1 इज पैरेलल टू L2 है, और हमें ये बताना, क्या बताना है कि ये जो है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि एक लाइन खुद के पैरेलल है। अगर L1 है तो L1 L1 के पैरेलल है, वो तो होगी यार। एक लाइन खुद के पैरेलल तो होगी, होगी या नहीं होगी।
ठीक है, तो L1 जो है वो L1 के पैरेलल होगी, तो मैं कह सकता हूँ L1 L1 एक मिनट, हाँ L1 L1, ठीक है, और ये लाइन उसके पैरेलल, तो मैं कह सकता हूँ L1 L1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1 लाइन के पैरेलल होगी तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, दूसरी चीज सिमेट्रिकल के लिए यहाँ पे L1 और L2 पैरेलल है आपस में। ठीक है, तो L2 और L1 भी तो आपस में पैरेलल होंगे। वही बात, इधर से ही पकड़ो, कान को पकड़ा तो कान ट्रांस। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, और सिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल के लिए कैसे चेक करेंगे, अगर L1 पैरेलल टू और L2 पैरेलल टू है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी। और एक लाइन ये है, L2 ये है, अब मैं L2 के पैरेलल लाइन खींचूं L3, तो ये आपस में पैरेलल L3 है। तो जब L1 और L2 बिलोंग्स टू R और L2 और L3 बिलोंग्स टू R, तो L1 और L3 भी क्या होंगे, बिलोंग्स टू R होंगे, तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा बताओ, तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। उसके बाद बोला गया फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 एक स्ट्रेट लाइन की, इसमें जो उसका स्लोप है वो 2 है। अब इसका सेट, सारे सेट सिंपल तो y इज इक्वल टू 2x प्लस k, क्योंकि सेट में जो इसका स्लोप होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, ठीक है, यानी काटेगी वो किस पे, k पे। ठीक है, k की वैल्यू क्या है, k इज व्हाट, कांस्टेंट। सेट लिखना है तो प्लस के, ओके। चलिए, तो ये एक, तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि आर बी द रिलेशन इन सेट, एक सेट दिया, ठीक है, 1 4, और आर एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 1 एंड 1, ये आपको खुद करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या चेक करना है, सिमेट्रिकल, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब इसके डबलेट्स हैं 1 1 4 4 है, 1 ये ना 4 4 3 3 रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या चेक करना है, सिमेट्रिक 1 2 2 1 है, नहीं है तो सिमेट्रिक। एक चेक करो, बाकी की जरूरत नहीं, अगर वो 1 2 का सिमेट्रिक इसमें है। ठीक है, उसके बाद चेक कर लो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में 1 2 2 2 यानी 1 2 होना चाहिए, ये रहा। अब इसको चेक कर लो, और इसका कोई है ही नहीं तो छोड़ दो, 1 1 1, ठीक है, 4 4 इसका कोई कोई इसको भी छोड़ दो। ठीक है, 1 3 का कोई पेयर नहीं है, 1 3 और 3 3 है ना, तो 1 3 और 3 3 और 3 2 का 3 2 है इसमें, 3 3 ये रहा, 3 2 ये रहा, तो 3 यानी 3 2 होना चाहिए, 3 2 है इसमें, नहीं है, तो ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। ऑप्शन में क्या बोला गया है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन इसका एक ऑप्शन जो है ना, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, ओनली रिफ्लेक्स। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 3 3 और 3 2 का वो नहीं है ना, अरे है तो सही, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 3 और 3 2 का 3 2 ऑलरेडी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो करा दे, देखो आर जो दिया हुआ है, दिया हुआ है 1 2 को 1 को 4 को 1 3 3 को 3 को, ठीक है, और जो सेट है सेट 1 रिफ्लेक्सिव के लिए जो हमारा सेट दिया उसके डबलेट्स होने चाहिए इस रिलेशन, यानी ए कोमा ए शुड बिलोंग्स टू आर, एवरी ए बिलोंग्स टू सेट। ओके, तो सेट में 1 2 3 4 है, तो इसके डबलेट्स यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, 1 1 ये रहा, 3 3 ये रहा, 4 4 ये रहा, तो इट इज रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव, ओके, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए 1 कॉमा है लेकिन 2 कॉमा नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में देखो 1 कॉमा किसके साथ जोड़े बनाएगा, 2 कॉमा 2 के साथ, क्योंकि ये 2 से खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होना चाहिए 1 कॉमा 2 इसमें है, 2 कॉमा 2 इसके साथ जोड़े बनाएगा, 2 से स्टार्ट हो रहा है, कोई है ही नहीं ऐसा, तो इसको छोड़ दो। 1 कॉमा इसके साथ जोड़े बनाएगा जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट, तो क्या होना चाहिए 1 कॉमा 3 खुद है, ठीक है, हो गया। 4 कॉमा किससे स्टार्ट होना चाहिए, जो 4 से स्टार्ट कोई भी नहीं है, तो ये भी हो गया। 1 कॉमा 3 किससे स्टार्ट होना चाहिए, 3 कॉमा 3 से, ये तो 3 3 यानी 1 कॉमा 3 होना चाहिए, तो 1 कॉमा 3 ऑलरेडी है। 3 3 3 किससे स्टार्ट होना चाहिए, 3 से, तो 3 3 और 3 2, 1 1 3 और 3 2 भी जोड़े बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी 3 से स्टार्ट होता है, तो 1 कॉमा 2 है, 1 कॉमा, ठीक है। अब 3 3 को चेक करो, 3 3 3 2 यानी 3 2 होना चाहिए, ये ऑलरेडी है, और 3 2 चेक करने के लिए 2 चेक करो, तो ये 3 2 होना चाहिए, ये ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके सबके क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव इसमें प्रेजेंट है, सो इट इज, हम कह सकते हैं कि ए कॉमा बी रिलेटेड, ए कॉमा सी रिलेटेड हुआ, सो सी कॉमा ए इज आल्सो रिलेटेड, सो इट इज व्हाट, तो इस कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट, ओके। चलिए, ओके, क्वेश्चन हो रहा है, लेट आर बी द रिलेशन सेट नेचुरल नंबर का दिया हुआ है, और आर जो दिया हुआ है ए को, ए जो है वो बी माइनस 2 है, और बी जो है 6 से कम, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो रिलेशन निकाल लो, जो सेट है वो एन है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब इसमें रख के देखो, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 हमें दिया, और बी जो है वो लेस देन 6 है, यानी बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 हो सकती है। तो जब बी 1 है तो ए कितना होगा, अब यहाँ से बी निकाल दो, बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 2, ठीक है। जब बी 1 है तो ए कितना होगा, 3, जब बी 2 है तो ए कितना होगा, 5, जब बी 3 है तो ए कितना होगा जब बी 2 है तो ए कितना होगा, 4, जब बी 3 है तो ए होगा 5, जब बी 4 है तो ए होगा 6, जब बी 5 तो ए होगा कितना, 7, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या है, 3 कोमा 4 कोमा 5 कोमा 6 कोमा और 7, यही तो आया, ए कोमा बी है ना, तो ए की वैल्यू पहले लिख दो, बी की बाद में लिख दो, तो ये आ गया। अब देखो इसमें से कौन सा बिलोंग कर रहा है, 2,4 बिलोंग है, कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, तो ये छोड़ो। 3,8 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको छोड़ो। 6,8 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको भी छोड़ो। अरे कोई कर भी रहा है, 8,7 भी नहीं कर रहा। अच्छा सुनो, इतनी काम धाम करने की जरूरत नहीं है इसमें, एक मिनट देखो, इधर से देखो, ऑप्शन से देखो, जब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखो आर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक मिनट, बीच बीच में थोड़ा चलना, देखो इसमें क्या करना है, इसमें देखो क्या करना है, इसमें देखो ए कोमा बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 है, ठीक है, जो ए है वो बी से 2 कम है, तो यार पहले ऑप्शन में देख लो, ये ए है, ये वाला पार्ट ए है, ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट ए है, और ये वाला पार्ट क्या है, बी है, तो इसमें ए जो है वो बी से कम दिख रहा है ना, तो ए बी से 2 कम दिख रहा है ना, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट होगा। करने का तरीका वो भी ठीक था जो मैं कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ गलती हो गई थी, ठीक है। करने का तरीका क्या है, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करके करना है, तो बी की वैल्यू 6 से कम है, मैं बी की सारी वैल्यू, बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस, ठीक है, बी की वैल्यू 2,
तो ए की वैल्यू क्या है 0, लेकिन -1 और 0 और नेचुरल नंबर, तो -1 और 0 हट जाएंगे। फिर बी की वैल्यू तो 3, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू तो ए की वैल्यू क्या आएगी, और 4 इसके 2 और 4 इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। कैसे, देखो a इज इक्वल टू b माइनस 2 है, ठीक है, और इसमें b जो है वो लेस देन 5 है। ठीक है, तो b की वैल्यू, जब b की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम, 1 2 3 एंड 4, b की वैल्यू लेस देन 6 है तो 5 तक रख सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या क्या आएगी उस टाइम पे, -2 -2 -2 -2 -2, a इज इक्वल टू a इक्वल टू a इक्वल टू a इक्वल टू, ये क्या आई -1, ये आई 0, ये आई 1, ये आई 2 और ये आई 3। अब ये दोनों तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तो नेगलेक्ट हो गए। तो हमारा जो रिलेशन आया वो क्या है, बताओ क्या है, ए कोमा बी, ए की वैल्यू क्या है 1, कब जब बी की 3, ए की वैल्यू क्या है 2, कब जब बी की 4, ए की वैल्यू क्या है 3, जब बी की 5। तो इसमें देखो कौन सा बिलोंग कर रहा है, 2,4 ही तो आ रहा है बस इसमें, तो 2,4 इसका क्या होगा, आंसर होगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन को, और नहीं तो डायरेक्ट करके देख लो यहीं पे, वरना एक्सप्लेनेशन देखनी है तो ये दोनों तो नेगलेक्ट, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है ना -1 और 0। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर आपने देखी है तो लगभग 2 घंटे की वीडियो हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, सो मच वीडियो देखने के लिए, आई होप। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।